Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब आज की हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। Prime Minister Narendra Modi interacts with economists, business leaders at Niti Aayog as a part of pre-budget exercise. Domestic stocks zoom more than 1.5%. Sensex regains 41,000 mark. Nifty reclaims the 12,200 level and rupee strengthens 48 paise against the US dollar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पूर्व मुहिम के तहत नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और व्यापार जगत के प्रमुखों से की बातचीत। घरेलू शेयर बाजार 1.5% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स फिर 41,000 के पार हुआ। निफ्टी भी 12,200 के स्तर को फिर पार कर गया और रुपए में डॉलर के मुकाबले 48 पैसे की मजबूती हुई दर्ज। And before we go to our first story, we'd like to inform you that we have started a new program, Money Matters, based on financial literacy and inclusion. You may listen to this interactive program on our official YouTube channel and other digital platforms from 4:05 to 4:30 every evening. Each show will have one particular topic that it's dedicated to. Tomorrow's topic is investment in unit-linked insurance plans or ULIPs. You may send your queries in advance on our email ID at moneymatters.air@gmail.com. That is moneymatters with an S. You can also use the live chat option between 4:05 and 4:30 tomorrow and ask your questions live. But if you want to send your questions in advance, the email ID once again is moneymatters.air@gmail.com. Moving on to the first story that we are tracking, a very important story. Prime Minister Narendra Modi has called for focused efforts from all stakeholders in order to achieve the target of $5 trillion economy in India. Mr. Modi said, the idea of a $5 trillion economy is not a sudden development and it is based on a deep understanding of the strengths of the country. The Prime Minister was interacting with senior economists, private equity and venture capitalists, business leaders from manufacturing, travel and tourism, apparel and fast-moving consumer goods, analytics, subject experts in the field of agriculture, science and technology and finance at the Niti Aayog today. The meeting was held as a part of the pre-budget exercise. The Prime Minister said that the strong absorbent capacity of Indian economy shows the strength of basic fundamentals of the Indian economy and its capacity to bounce back. He said sectors like tourism, urban development, infrastructure and agri-based industry have a great potential to taking forward the economy and for employment generation. क्या कहेंगे आप राजीव, आज जो ये मीटिंग हुई है जिसमें जो व्यापार जगत के प्रमुख हैं और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि कंसर्टेड एफर्ट हो बिजनेस वर्ल्ड का, गवर्नमेंट का, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, और किस तरह से लगता है आपको वे फॉरवर्ड है कि हम अपने जो भी हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर सकें? नहीं, कंसल्टेशन इज ऑलवेज गुड। अगर ऐसा नहीं कह सकते कंसल्टेशन, द क्वेश्चन इज कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ग्लोबल इन नेचर है। अगर जो पिछले 4 दिनों में हुआ है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग विच पीपल एनीवन कैन डू एनीथिंग, बट आई एम श्योर द कंसल्टेशंस, द फैक्ट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सोचा जा रहा है कि कैसे कंजम्पशन को पुश मिले, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ है और पार्ट ऑफ दैट स्लो डाउन इज ऑल्सो बिकॉज कि जो लास्ट माइल जो क्रेडिट डिलीवरी थी
उस सिस्टम में इशू आए हैं। मेरे हिसाब से वो जब सिस्टमेटिक इशू जब ठीक होंगे, दैट इज़ वेयर प्रॉब्ली कंजम्पशन को थोड़ा सा पुश मिलेगा। लेट्स सी कितना सरकार कर पाती है गिवन द फिस्कल कॉन्स्टेंट इट हैज़, कि कितना वो बजट में इंडिविजुअल को पुश कर पाते हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉरगेट कि जो फिस्कल पार्ट होता है, बजट इस बाकी चीज़ों के लिए भी बजट को देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आता है जिसमें एलोकेशन टू जुडिशरी बढ़ जाता है, जो ईज ऑफ कुछ और जगह पे जहाँ पे अभी थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से कई बार आपके जो मामले हैं वो लटक जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो लंबी हो जाती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अगर एक बार अगर उसमें कुछ फोकस आता है तो देन इट अगेन इट्स अ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द मार्केट्स। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने 2 दिन पहले कहा था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें सख्त ज़रूरत है, ताकि इवन एग्रीकल्चर की उन्होंने बात कही थी, ताकि उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि फार्मर्स को जो फाइनल प्राइस है उसका एक ज़्यादा शेयर मिल पाए। सो आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी? नहीं, देखिए पर एक चीज़ देखिए सर, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है लार्जली। तो हमको ये, हम जब बात करते हैं तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट का है, कौन सा सेंटर का, कौन सा कॉन्करेंट है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कई लोगों को मैटर करते हैं वो स्टेट की लिस्ट में आता है, एंड डिपेंडिंग ऑन वो स्टेट कैसा रिएक्ट करती है वैसा होगा। आज जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करी, इतना बड़ा पार्ट हमारा इन टर्म्स ऑफ population and large part of our economy is dependent on what's happening in agriculture. So there is of course a need. The fact is that now we need to open a debate कि corporate farming होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसका अगर होनी चाहिए तो फिर किसान को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है, बाकी देशों में जहाँ हुई है, हाँ इनिशियल हिकअप भी आएंगे, XYZ प्रॉब्लम तो आनी है। अब इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ इशू बने रहेंगे किसी चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने में। पर उसके लिए एक पहला स्टेप लेने के बाद शुरू हो। तो आई थिंक एग्रीकल्चर एट मैन्युफैक्चरिंग में जो इश्यूज थे उसमें से सबसे बड़ा था कि एट द एंड ऑफ द डे टैक्सेशन वाज वेरी हाई, और साथ में लिटिगेशन वाज आल्सो देयर। अभी आपको एग्जामिशन नहीं लेना, आप मत लीजिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करिए और कर दी। मेरे ख्याल से हो सकता है ये दैट माइट इवन कम इज अ वर्थवाइल आइडिया कि फॉर इवन एन इंडिविजुअल स्टॉप टेकिंग एग्जामिशन, गिव अ लोअर रेट ऑफ टैक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उससे चलिए कंजम्पशन प्रॉब्ली I think should do well. If you look at the last few days, the news flow that has been there, the Prime Minister seems to have taken a more direct role in this year's budget formulations, and he's said to have met over 120 people in the last few days as well, and today also he met a lot of people, economists and all. So what does this, in fact the market seems to be have actually had a bump, a major surge today. There seems to be some anticipation of some big bold reforms or announcements in this year's budget. 3 weeks to go. What are your expectations? No, see, expectations as far as budget is concerned, let's take part of two things. As far as indirect taxation part is concerned, that role has been taken care by the GST Council. Now, indirect taxation, nothing much is going to happen except few cases where, it might be increased. I mean, very few areas are left where indirect taxes, but it can do much. The part which is there is direct taxes. In case of corporate, that has already come. A mini budget came in September morning. That has come. Now the question is of the individual. I think more than the fiscal thing, the issue is how are we able to provide take some measures and take a road where we say we are going to cut the decision making time. We are going to make decision making process far more based on technology. How much technology are we going to use in our administration? Because that takes away the subjectivity, and subjectivity takes care of, if there is no subjectivity, more transparency comes in, and that is what is required for administration. Fiscal measure, if it comes on a personal taxation front, good. The other thing is that probably I think long-term capital gains, if not reduction or removal of the rate, probably increase in time from 1 year, make it 3, that people get, if you keep it for 3 years, the incentive to keep a asset class which is inherently risky, you increase the timing and make it fair enough. That in such scenarios, people, especially in the government, look for those big ticket ideas. So if you were the person making that, what would those 1 or 2 big ticket ideas that you would think are really transformative?
I don't see. I Or is there any scope at all now? No, see, I keep on hearing about these. People are asking about structural reform. My point is again, which structural reform central government can do, and which structural reform has to be brought in by the state government. I think that has to be very clear. I mean, as Sonu just talked about agriculture, to me it's a states which have to think. Okay, government can do a model. That's it. Labor. So let's look at the central and the concurrent list. Within those two lists, what are those top 1 or 2 ideas that you think can be done by the government? Big ticket ideas, especially for demand generation and manufacturing. Demand generation, of course, you increase the supply of the money in the hand, increase the money in the hands of the people, and that is what leads to high demand. This thing is that has to be bringing more technology. I'm like that. If I was to look one bigger ticket item, I think opening more area for privatization. I mean, probably railways. There are talks about private railways being run. Coal mines, in fact. Coal mines. The only difference is now they can, instead of captive, they can sell it in this thing. There are others. This thing where to attract foreign investment in terms of areas where there are a large number of imports happening right now, which creates job also and takes care of that. Our increasing imports are kept in check. राजीव, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं एनएसओ के हमारी जीडीपी ग्रोथ को लेकर करंट फिस्कल ईयर में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो उन्होंने अनुमान दिया है वो 2% ही दिया है, जो मेन रीज़न है कि जीडीपी 5% बताई गई है. क्या लगता है आपको? नॉर्मली 2 ही पहलू होते हैं, एक फिस्कल मेजर्स होते हैं, एक मॉनेटरी मेजर्स होते हैं. सो कितना स्कोप आपको लगता है आरबीआई के पास है? क्या आपको लगता है कि जो हम बाजार में एक तेज़ी देख रहे हैं, जो हम आगे चलकर उस पर अभी स्टोरी पढ़ेंगे, ये क्या इन होप्स पर टिकी हुई है कि बहुत मेजर फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स आने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि ये जो वो है कि वो फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स में या किसी प्रकार उस पर टिकी हुई है, बिकॉज इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है. सी देखिए, एक तो जो अनाउंसमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की, वो वेल लेड आउट प्लान आ गया कि किस सेक्टर में होगा, किस स्टेट में होगा. दैट इज़ ऑलरेडी कम. सी हम लोग एक जो मुझे भी लगता है कि जो बजट को एक दिन बना लेते हैं, देश एक दिन से थोड़ा चलता है. आप एक दिन बैठ के अनाउंसमेंट करने लग जाएंगे और देश चल जाएगा. पिछले 4 महीने में बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, एंड सम ऑफ देम आर रियली बिग इन स्ट्रक्चरल इन नेचर. टैक्स कट सितंबर, टेलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर हैपनिंग. सो द होल कंसेप्ट ऑफ बजट वॉज ओल्डन डेज होता था कि एक दिन डिसाइड होगा कि किस इंडस्ट्रीज की किस्मत खुलनी है और किस पे एक्साइज और वो टैक्स चेंज होगा. रेलवे बजट भी. हाँ, और रेलवे बजट होता था. अब वो गए ज़माने. अब तो आपका जीएसटी जो मीटिंग है वो लिटरली एवरी मंथ एक छोटी बजट मिनी बजट मीटिंग है, फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सब आके डिस्कस करते हैं. तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से जो हो सकता है थोड़ा सोशल सेक्टर पे जो स्कीम्स होंगी उस पे होगा, बिकॉज रिफॉर्म इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है. वो एक दिन साल के 1 तारीख फेब को या 28 फेब को डिसाइड करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नेंस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन भी, या बाजार में भी कुछ ऐसा. हाँ, बाजार में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा हुआ है वो हट जाए, जो वो सब चीज़ें हैं वो बाजार में वो एक्सपेक्टेशन है. दूसरी बात, हम अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भूल जाते हैं कि जो बाज़ार है उसमें जो पैसा आता है वो बाहर से ज़्यादा काफ़ी आता है. वहाँ पे क्या सिचुएशन है? अगर मान लीजिए ऑयल प्राइसेस, बिकॉज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो हम ऑयल डिपेंडेंट हैं, हो सकता है 10 साल बाद जब ईवीज़ पे कार ज़्यादा रन करें तो शायद हमको ऑयल की प्राइस की चिंता ना हो उतनी. लेकिन इफ़ यू लुक एट दी वे वी आर स्ट्रक्चर्ड, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है. जो तेज़ी है पार्टली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑल्सो होती है. जैसे आज जो था वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि कुछ नहीं होगा, मतलब देख एक पूरा फियर था, दैट फियर गॉट ओवर बिफोर द यूएस मार्केट ओपन फॉर ट्रेड. सो द रैली इन द ग्लोबल मार्केट वाज बिकॉज ऑफ दैट. पर कुछ आशा बंधी है कि भारतीय इकोनॉमी बॉटम आउट कर गई है और यहाँ से शायद नंबर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे तब तक बाजार काफ़ी आगे हो चुका होगा. जब तक हम इस प्रोग्राम में कहेंगे कि नंबर अच्छे आ रहे हैं तब तक बाजार काफ़ी आगे जा चुका होगा. आई थिंक बॉटम आउट हो चुका है. द क्वेश्चन इज वो कितने दिन के बाद वो जो अपटिक. एंड अगेन मेरा मानना यह है कि वी शुड नॉट टेक 1-to-1 correlation between what's happening in the market and what's happening in the economy. Sensex is not a barometer of what's happening in the economy. It's just a barometer of what's happening in few select stock, and that too in the financial markets. We'll continue discussing the top stories of the day with Rajiv in the studio, but that will happen right after a short break on Market Mantra.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ, छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, जैसा आपको रवि ने प्रोग्राम के शुरू में बताया, हमने एक नया कार्यक्रम मनी मैटर्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू किया है। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को आप हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर जाकर कभी भी सुन सकते हैं। और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। भारतीय शेयर बाजारों में सेंसेक्स ने 635 अंकों की छलांग लगाई और निफ्टी फिर 12,000 के स्तर को पार कर गया। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य मतभेद को गहराने वाले कदम नहीं उठाने के संकेत आने के बाद वैश्विक निवेशकों ने राहत की सांस ली। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मजबूती के साथ खुला और पूरे सत्र के दौरान तेजी का रुख कायम रहा। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 1.55% की तेजी से 635 अंक बढ़कर 41,452 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.58% की वृद्धि से 191 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 12,216 पर बंद हुआ। आज बाजार में तेजी चौतरफा थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.51% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.55% की बढ़त दर्ज हुई। आज मार्केट ब्रेथ भी मजबूत थी। 1,820 शेयर बढ़े, 752 शेयरों में गिरावट आई, 208 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में तीव्र वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहने के बाद आई कि अमेरिका उन सबके साथ शांति स्थापित करने के लिए तैयार है जो ऐसा चाहते हैं। श्री ट्रंप का ये वक्तव्य ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमला करने के एक दिन बाद आया है। ईरान द्वारा ये रॉकेट हमला ईरान के उच्च सैन्य अधिकारी जनरल कासम सोलेमनी की हत्या पर प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। And reports said that there were no US or Iraqi casualties amid speculation that Tehran may have deliberately pulled its punches to avoid a wider conflagration. Risk sentiment received a further leg up after China said its Vice Premier Liu He will visit Washington next week for the signing of the much-awaited interim trade deal with the US. ICICI Bank was a top gainer in the Sensex pack, rallying 3.8%, followed by SBI, M&M, IndusInd Bank, Maruti Suzuki, Asian Paints and Reliance Industries. TCS, HCL Tech, NTPC and Sun Pharma were the only laggards, shedding up to 1.7%. BSE Realty, Auto, Bankex, Industrials, Finance and Energy indices rallied up to 2.8%, while IT ended in the red. So, Rajiv, if you look at it, nearly 3 shares, Sonu used the word chautarfa, nearly 3 shares rose for every falling share on BSE, and on NSE, almost 4 rose for every falling share on NSE. So what is the major reason behind it? Of course, Donald Trump's statement you already mentioned, saying that we'll give peace a chance kind of a statement. Any other Today, major partly because Thursday every week, as far as Nifty options are concerned, there is a weekly contract which get expired. So part of the up move or down move, any time on Thursday has a element of the settlement from weekly settlement. As far as we look at the total market breadth, it has been improving in last couple of weeks. Yes, there was development in US which no one had any idea what shape it's going to take. So there were decline. If you look at the market breadth, as which you just told, it's clearly reflecting that over gradually, slowly, the risk appetite for mid cap stocks increasing. Now we are going to actually enter with tomorrow with Infosys result, we actually enter into the earning season. Now that is where numbers are now going to impact. So for at least next 1 month, it's the numbers, and for example, the bellwethers of that industry will determine what happens to the other smaller players in the sector. So I think it's going to be, market might turn volatile. I mean, and it might reward companies which are able to deliver some bit of positive surprise. Probably more money is going to flow because there is an X amount of money which is continuously coming into market. Now it's looking for any hint that okay, this sector this is doing well, and in this sector this company is doing well. So there is going to be slightly sectoral bias for next 30 to 40 days, which is going to drive the market. So Rajiv, as an expert, आपको किन सेक्टर से आशा है कि पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे?
और पॉजिटिव किन से नेगेटिव आ सकते हैं? नेगेटिव देखिए, मुझे ऐसा नेगेटिव तो देखा, आप देखेंगे पीछे जो आईआईपी नंबर्स आए थे वही मेटल्स जो कोर सेक्टर के थे उनमें से लगता है, बट वो इंडी के नंबर्स खराब आना और शायद वो वैल्यूएशन में बिल्ट है या नहीं है वो एक दूसरा क्वेश्चन है. आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द बैड न्यूज इज बिल्ट इनटू जो आई है. मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है वो शायद पीएसयू बैंक से आएगा. उनमें नंबर्स जो हैं बेहतर आएंगे जो एक्सपेक्टेशन है उससे. Is the US-Iran thing cooled off now? Because as we read news coming in, Trump is saying that we'll look at extreme sanctions against Iran. Has that thing played out itself? I think it has played out. I mean, of course, both look at the history of both the countries. They will keep trying. Iran will keep trying what they have to do. But the major possibility of a major flare-up happening in that region, which leading to a problem with the oil prices and the region itself. Because see, we are only thinking about oil prices. We are not looking at the other part of it, especially for India. We have millions of people, Indians living in that part of the world, a huge amount of money which they bring, remit back to India. I mean, that's the economic part, but the fact that Indians are staying there, I don't think so that's going to flare up anytime. Because Iran also knows that, you can't fight with US. राजीव, अगर हम You can make noises, as President Trump also will do every time he tweets. राजीव, अगर हम इक्विटी को देखें एज एन एसेट क्लास, तो दिसंबर 13वां सक्सेसिव मंथ रहा है जिसमें जो एसआईपी फ्लोज है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो पैसा आया है बाजार में, वो 8,000 करोड़ से अधिक रहा है. क्या लगता है आपको, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा 2020 में? क्या इक्विटी बाजार में हम इस तरह का इन्फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये 2030 तक भी कंटिन्यू करेगा. सी, व्हेन दिस चेंज हैज हैपेंड आफ्टर ईयर्स. हिंदुस्तानी जो सेविंग थी बीच बीच में कम ज़्यादा कब होगा, जब आप देखेंगे कि एक रियल एस्टेट बहुत चल जाएगा या कुछ कोई और अदर एसेट क्लास. बट मेरे हिसाब से दिस इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द वे इंडियंस सेव करते हैं. But in the last 7-8 months, it's almost gotten stuck at that 8,000 crore number. Will it go up now? No, that has happened because of two reasons. One, that while you see index moving up, the other money which is going to SIP for mid and a small cap, and then you don't see the money coming up. So probably that money slightly you take it back. And also in last 7 months, there has been some movement in gold. So as Indians, howsoever, we will again rush towards gold, though now you can buy a gold ETF which is even there. So there, I think probably that's another place where the money is going to start flowing over a period of time, and people will realize that owning gold in a paperless form, in electronic form, it's better actually, rather than going physical gold and all, because you then don't risk the depreciation which you get because of some other reason in the physical gold market. और जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो तो वो उससे एक्चुअली देखिए, एसआईपी का मतलब ये होती रहे टेंशन क्या है. मैं तो आप उसको अगर आज हो गया, मान लीजिए ये अगर होता, अगर इसके लिए कोई एसआईपी रोक देगा तो वो गलत है. बिकॉज व्हेन यू स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट, देन आप उसके बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो. जो एसआईपी का प्रिंसिपल है कि डज नॉट मैटर, वॉलेटिलिटी है, इवेंट है, एक्स है, वाई जेड है, आपको एक प्राइस लेना है, एंड ओवर अ लॉन्गर टर्म this asset class will give you better result. And there's a But theory. ETF gold, just completing that discussion, ETF gold में आपको लगता है कि अभी खरीदने यूनिट्स प्रॉफिटेबल रहेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने नहीं, गोल्ड में बहुत अपवर्ड ट्रेंड हम देख वो रहे नहीं, हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड में खरीदना ठीक है. मेरे हिसाब से तो आई थिंक प्रॉब्ली कुछ रिटर्न नहीं आता. 7-6 साल जिनके पास थे 2013 में, जिन्होंने लिया था 33,000 के आसपास, उन्होंने 2018 तक 33,000 के भाव देखा है. तो वो 6, अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखेंगे तो कोई नहीं है. वो डॉलर का एडजस्टमेंट होगी, थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई, तो इसलिए एक बंचअप हो जाती है रिटर्न. बट आई डोंट थिंक सो दैट. मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि आप गोल्ड ETF खरीदें. आई एम ओनली सेइंग इसके दैट, जैसे अभी रवि ने कहा था कि ये यहाँ आपने पूछा था कि ये सस्टेन करेगा. आई थिंक दिस अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कि फिजिकल एसेट को लेके उसे अलमारी के अंदर छुपाने की बजाय एक आ रहा है कि अब आपको विश्वास आता है कि मेरे डिमैट अकाउंट में मेरी जो चीजें पड़ी हैं वो मेरी हैं, कोई लेके नहीं जा रहा. दैट फेथ हैज नाउ फाइनली गॉन डाउन टू स्मॉलर सिटीज फ्रॉम वेयर द सेविंग्स आर नाउ कमिंग इनटू दिस पार्ट ऑफ, in this form. There is a theory among experts, I would like to just bump it out against you, is that bounce it off against you, is that in year 2020 and probably even 2021, you will see every industry kind of consolidating towards 2 or 3 players, and those would be the large players, and the small players would
fall by the wayside. So therefore, that theory suggests that large caps will continue doing well for the next 12 to 24 months. And the other theory says that, of course, that it will become more broad-based. Mid caps will pick, small caps will pick. Ravi, my take is that one, it's not likely. This theory about 3 players coming in an industry has come up because of the telecom thing which has happened. I mean, this use of this word. We're seeing it in the e-commerce, other sectors as well. No, that 2 or is, 3 players in every sector. E-commerce largely is an unlisted space, and unfortunately unlisted. Reliance is coming in, so that will probably be. So the point to me, I don't think so that consolidation is going to be that strong as we are talking about. Yes, there are going to be accidents. The companies which were thriving on tax arbitrage, the companies which were cooking their books thinking that they will take a loan from the bank and never return and then go to CDR where they will pay 20% of what they had borrowed, those companies have gone out of the business and will continue to go out of business. So to me, I don't think so that is going to be the case, that we are going to be left by, let's say, some only 200 companies. To me, it is not likely to be the case. And because, see, if you look at before the GST was implemented, this was the same argument, things are going to shift. People have now gradually moved on to giving GST, now moving towards a systematic way of doing business. I don't think so that mid-cap and mid-cap companies or small-cap companies are going to die. So you would prefer mid-caps in this year, 2020? At this point of time, yes. But again, the point is when we use the word mid-cap, as far as I am concerned, I look at a business because I am not investing in a stock price, I am investing in a business. आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे की मजबूती से 71 रुपए 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का स्वागत निवेशकों ने किया और घरेलू बाजारों में तेजी से भी संकेत लिया। उधर दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजारों में पिछले सत्र की तीव्र गिरावट के बाद आज सुधार हुआ। ये बढ़त अमेरिका और ईरान की उन टिप्पणियों के बाद आई जिनमें उन्होंने पश्चिम एशिया में मतभेद गहराने से जुड़ी चिंताओं को शांत कर दिया। जापान का निक्केई 2.3% के उछाल पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% की तेजी में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% की भारी बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.6% की तेजी पर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.5% की वृद्धि पर था, फ्रांस का कैक 0.4% की बढ़त पर और जर्मनी का डैक्स 1.2% की तेजी पर थे। The S&P 500 and the Nasdaq hit record highs after President Donald Trump's comments eased fears of an all-out conflict in West Asia as Iran retaliated by firing missiles following the death of an Iranian general last week in a US airstrike. The Dow Jones Industrial Average appreciated 0.7%, the S&P 500 gained 0.6%, and Nasdaq Composite Index climbed 0.8%. And if you look at the oil market, oil prices today steadied after the previous session's sharp losses on the back of swelling US crude stocks and easing fears of an escalation in conflict between the United States and Iran. Brent crude prices were trading around $65.50 per barrel, and WTI prices were at around $59.90 per barrel when reports last came in. उधर रुपए में मजबूती और वैश्विक बाजारों में मंदी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 766 रुपए लुढ़क कर 40,634 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने के अनुरूप चांदी में भी 1,148 रुपए की भारी गिरावट आई और ये 47,932 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में रुख मंदी का था। सोना $1,546 प्रति आउंस पर और चांदी $17.93 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आज के कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सोनू। Thank you, Rajiv. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with economists, business leaders at Niti Aayog as a part of a pre-budget exercise. Domestic stocks zoom more than 1.5%. Sensex regains 41,000 mark. Nifty reclaims 12,200 level. And rupee strengthens 48 paisa against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों से भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विचार अचानक नहीं आया है, बल्कि देश की क्षमता की गहरी समझ पर आधारित है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों, पूंजीपतियों और विनिर्माण, यात्रा तथा पर्यटन, परिधान, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के निर्माताओं और कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। ये बैठक बजट पूर्व चर्चा के एक हिस्से के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मसात करने की क्षमता ने साबित कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं और इसमें मजबूत स्थिति में आने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा तथा कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की बड़ी क्षमता है। भारत को असीमित संभावनाओं की भूमि बताते हुए प्रधानमंत्री ने वास्तविकता और अनुमान के बीच अंतर को पाटने के लिए सभी पक्षों से योगदान करने को कहा। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति यथाशीघ्र शांत हो और वो इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के बारे में प्रवक्ता ने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। चाबहार परियोजना के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने इसके महत्व को समझा था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ संपर्क स्थापित करने और उसे सहायता पहुंचाने के लिए ये परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 विदेशी राजनयिकों का एक शिष्टमंडल आज कश्मीर की यात्रा पर है। यात्रा का आयोजन राजनयिकों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि राजनयिक जम्मू कश्मीर में जाकर ये देखना चाहते थे कि राज्य में सामान्य स्थिति कितनी तेजी से बहाल हो रही है। राजनयिकों ने विभिन्न समुदायों के सदस्यों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। शिष्टमंडल में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, नॉर्वे, फिलीपींस, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजर, नाइजीरिया, टोंगो और गयाना के राजनयिक शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे ने आज सवेरे सियाचिन बेस शिविर का दौरा किया। सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद किसी अग्रिम चौकी का उनका ये पहला दौरा है। दिल्ली पुलिस ने आज राजधानी के वजीराबाद क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद इस्लामिक स्टेट से प्रभावित मॉड्यूल के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त पीएस कुशवाहा ने बताया कि यह आतंकवादी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। वे विदेश में बैठे अपने आकाओं से निर्देश ले रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन और धोखाधड़ी के एक मामले में हरियाणा स्थित एसआरएस समूह और उसके प्रमोटरों की 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भूमि, भवन निर्माण परियोजनाएं, रिहायशी मकान और फिक्स्ड डिपॉजिट संबंधी कागजात शामिल हैं। कश्मीर अगले वर्ष दिसंबर तक रेलवे नेटवर्क के जरिए देश के अन्य भागों से जुड़ जाएगा। सरकार ने विश्व के इस सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण पूरा करने की नई समय सीमा तय की है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होने का अनुमान है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कुआलालंपुर में आज सिंधु ने जापान की अया ओहरी को प्री क्वार्टर फाइनल में 21-10, 21-15 से हराया। अब सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से होगा। साइना ने दक्षिण कोरिया की आन सी यूंग को 25-23, 21-12 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज कबड्डी और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता शुरू हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे खेलो इंडिया आयोजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अविनाश जोशी के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी खेल समाचार अतहर सईद से सुनिए। मुख्य समाचार। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण कल से गुवाहाटी में शुरू होगा और इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल पुणे में खेला जाएगा और भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के उनके जोड़ीदार वेस्ली कूलहाफ ने दोहा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण कल से गुवाहाटी में शुरू होगा और इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। आज कबड्डी और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। गुवाहाटी के सरू सजाए स्टेडियम में कल शाम समारोह का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ कई नामचीन खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस प्रतियोगिता से देश में खेल क्रांति का आगाज हुआ है। खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 6,800 खिलाड़ी 20 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। 2 नए खेल लॉन बॉल और साइकिलिंग भी इस बार प्रतियोगिता में जोड़े गए हैं। ये सभी खेल गुवाहाटी में 11 स्थानों पर आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के अलावा असम सरकार नकद पुरस्कार भी प्रदान करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे खेलो इंडिया युवा खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने जापान की अया होरी को महज 34 मिनट तक चले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-10, 21-15 से हरा दिया। ये अहोरी पर सिंधु की लगातार 9वीं जीत है। पिछले साल बासेल में विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली 24 वर्षीय सिंधु का अब क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई यू यिंग से मुकाबला होगा। यिंग ने 7वीं वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की सुंग जी हुन को 21-18, 16-21, 21-10 से हराया, जबकि लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल ने दक्षिण कोरिया की आन से यंग को 39 मिनट तक चले एक रोमांचक मुकाबले में 25-23, 21-12 से शिकस्त देकर अंतिम 8 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अब साइना का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। समीर वर्मा और HS प्रणय दोनों को दूसरे दौर के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल पुणे में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इंदौर में खेला गया दूसरा T20 मैच 7 विकेट से जीतकर भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। गुवाहाटी में पहला मैच बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया गया था। भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के उनके जोड़ीदार वेस्ली कूलहाफ ने कल दोहा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। बोपन्ना और कूलहाफ की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका और अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। सेमीफाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला हेनरी कॉन्टिनेन और फ्रैंको स्कुनोगोर से होगा। वहीं भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के उनके जोड़ीदार आर्टेम सिताक की जोड़ी पहले दौर में फ्रांस के जेरेमी चार्डी और फेब्राइस मार्टिन से 6-7, 2-6 से हार गई। सिडनी में चल रहे ATP कप टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एलेक्स डी मोर और निक किर्गियोस की जोड़ी ने जेमी मुरी और जो सलिसबरी के ब्रिटिश युगल को पराजित कर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत दिलाई और टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टाई ब्रेकर तक चले मुकाबले में ब्रिटिश जोड़ी पर 3-6, 6-3, 18-16 से जीत हासिल की। सिंगल्स मुकाबले में किर्गियोस ने कैम नोरी को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी, जबकि डी मिनोर डॉन इवांस से 7-6, 4-6, 7-6 से हार गए।
अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अपनी हमवतन क्रिस्टीना मैकहेल को हराकर ऑकलैंड में खेले जा रहे WTA ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना ने मैकहेल को 3-6, 6-2, 6-3 से मात दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी से खेल समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।